Assalamualaikum, my name is Saliha Wase and I am a clinical psychologist by profession. So today the topic of our discussion is how to formulate IEP goals. Now what actually are IEP goals? According to the Individuals with Disabilities Education Act, IEP goals are a statement of measurable goals including academic and functional goals. So the goals that we formulate in IEP, they cover all dimensions like academic, socialization, behavioral and functional goals. Now there's an acronym which describes how do we formulate IEP goals, and that is SMART. S-M-A-R-T. S stands for specific, like what should be our goals, when should we create them, and why should we create them. And then next is measurable. How can we measure the goals? We should be creating such goals that are measurable, that we can assess that whether that child has achieved them or not. And next is achievable. How the goals will be achieved. Okay, so what is the process, what are the dimensions that need to be covered, and how the child will be achieving that certain goal. Next is relevant. So our one goal should be relevant to other goals. Like it should be synchronized with the long-term goals, and it should be a holistic goal which should be relevant to all other goals that we form in an IEP. It should be time specific. Like there should be a deadline of how and when we'll be achieving the goals. There should be a specific deadline, like in 3 months, in 4 months, in 6 months, in a year. So there should be time specific. So why do we create an IEP? Basically we create an IEP to track the progress of our child. ठीक है, अब होता ये कि every individual is different from each other, we all know that. So हर बच्चे का जो IEP प्रोग्राम हम बनाएंगे या IEP goals जो हम बनाएंगे वो भी tailored होंगे for that particular child. अब उसमें सबसे पहले हमने करना ये होता है कि वी आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकता है, उसके लिए वी क्रिएट अ बेस लाइन. ठीक है, और वो बेस लाइन ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी मेजरेबल इन द फ्यूचर एज वेल, सो दैट वी कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ऑफ 3 months और टिल द एंड ऑफ 6 months, हाउ मच हैज ही अचीव्ड. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको शर्ट हम देखते हैं कि बटन करनी आती है या नहीं बटन करनी आती. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक IEP बेसिक गोल है बटनिंग एंड अनबटनिंग द शर्ट. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम लार्जर बटन्स. हम देखेंगे कैन ही बटन और अनबटन द लार्जर शर्ट बटन्स. अब सबसे पहले अनबटनिंग आती है, फिर बटनिंग आती है. तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो अनबटन कर सकता है, लाइक बटन्स को वो खोल सकता है जो लार्ज साइज के बटन्स होते हैं. ठीक है, तो हमारा जो IEP गोल होगा वो ये होगा बटनिंग एंड अनबटनिंग द शर्ट बटन्स. ठीक है, ये हमारा मेन IEP गोल होगा. और बेस लाइन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ही कैन अनबटन द लार्ज साइज ऑफ शर्ट्स. तो फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका वो ये होगा कि वो अनबटन कर सके मीडियम साइज के शर्ट बटन्स. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि ही शुड नो हाउ टू अनबटन द स्मॉलर साइज ऑफ स्मॉलर शर्ट साइज बटन्स. ठीक है, उसके बाद हमारा जब अनबटनिंग के तीनों स्टेप्स आ जाएंगे उसके बाद विल मूव ऑन टू द बटनिंग प्रोसेस, कि पहले वो बटन करे लार्ज शर्ट बटन्स को, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, इस तरह से. So what I'm trying here to explain is that every IEP goals must be tailored and individual for each child, and they should focus on child strengths and they should work from a baseline, present, current, functioning level identify करना है. और उसके बाद we'll move on to the next step. It's a gradual movement. अब उसमें इस तरह से होता है कि कुछ बच्चे एकदम से अचीव नहीं कर पाते. कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा महीना गुजर जाएगा बट दे विल नॉट बी एबल टू अचीव अ सर्टेन गोल. उसके लिए वी नीड टू गिव देम टाइम. फिर उसके बाद हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं. ठीक है, जो थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, इवन इफ द पेरेंट्स आर मेकिंग देम फॉलो द IEP, तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है. मे बी हम उनको कुछ विजुअल कार्ड्स दिखा दें, कुछ उनको मॉडल करके दिखा दें, उनके लिए कोई और तरीके ढूंढ लें. ठीक है, इस तरह से उनके लिए आसानी होगी वो गोल को फॉलो करने में. Okay, so as I told you earlier that an IEP must be covering all aspects like the academics of the child, his socialization, his self-help and his cognition. So अब हम जब IEP बना रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज कि रीइंफोर्समेंट क्या है. वी ऑल लाइक प्रेज. हमें कोई भी तारीफ करे तो हम वो बिहेवियर और ज्यादा करते हैं. ठीक है, वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन. सो इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइकेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर टू अकर अगेन इन द फ्यूचर, हम क्या करते हैं, बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं. अब रीइंफोर्स करने में क्या होता है कि हमारी 3 तरह की रीइंफोर्समेंट्स होगी. एक सोशल, एक टैंजिबल और एक एक्टिविटी बेस्ड. सोशल ये हो गई कि वी प्रेज देम. ठीक है, वी गिव देम अटेंशन, वी हग देम. ठीक है, वी गिव देम पॉजिटिव वर्ड्स, वी से देम पॉजिटिव वर्ड्स, जिससे जो है वो और ज़्यादा वो बिहेवियर जो है वो फ्यूचर में करेंगे. टैंजिबल होगी कि उनकी कोई भी फेवरेट चीज़ दे दें. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हर बच्चे की रीइंफोर्समेंट जो है ना वो डिफरेंट होती है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द थेरेपिस्ट और द पर्सन हु इज मेकिंग एन IEP, अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट, दे नीड टू आइडेंटिफाई कि एक बच्चे की रीइंफोर्समेंट क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ लेके खुश होता है. एक बच्चा अगर चॉकलेट से खुश हो रहा है तो एक बच्चा किसी सावर चीज़ को लेके खुश होगा. उसके लिए फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स उनको पसंद होंगे, किसी को चिप्स पसंद होंगे. तो हर किसी की रीइंफोर्समेंट जो है वो डिफरेंट होती है. टैंजिबल में वी गिव देम सम टैंजिबल आइटम्स. फिर उसके बाद एक्टिविटी ड्रिवन ये हो गया कि अगर वो बिहेवियर करता है और वो उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है और जो हमारे
IEP की स्टेप्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, तो उसमें वी गिव देम टाइम टू प्ले विद टॉयज, टाइम टू प्ले विद पियर्स, टाइम टू प्ले ऑन स्विंग्स, टाइम टू वॉच टेलीविजन. इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कम साइड बाय साइड अलॉन्ग विद द अचीवमेंट ऑफ IEP गोल्स. सो जब हम IEP बना रहे होते हैं उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द टारगेट ऑब्जेक्टिव कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है विच नीड्स टू बी अचीव फॉर द चाइल्ड. ठीक है, उसके बाद वी आइडेंटिफाई द टीचिंग टेक्निक कि क्या तरीका है जिसके थ्रू हम सिखाएंगे. क्या वो विजुअल्स हैं, क्या वो मॉडलिंग है, क्या वो प्रॉम्प्टिंग है. ठीक है, उसके बाद व्हाट वी सी इज कि मटेरियल यूज, कैसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम यूज़ करके उसको सिखा सकेंगे कि वो गोल कैसे अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे शर्ट के बटनिंग की बात हो रही थी पहले, तो उसमें आपने बटन्स कुछ दे दिए डिफरेंट साइजेस के, आपने डिफरेंट शर्ट्स दे दी, फिर आप कार्डबोर्ड पे उसको बना सकते हैं जिससे वो जैसे जिप अनजिप का कॉन्सेप्ट आ सकता है. तो इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं जब हम एक IEP गोल सिखा रहे होते हैं. सो IEP जो है ना वो बहुत एक होलिस्टिक चीज़ है. उसके अंदर देयर कम्स अ लॉट ऑफ लेवल्स और लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स विच नीड्स टू बी कवर्ड एंड लॉट ऑफ एफर्ट गोज बाय इन. सो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है जो हमने अडॉप्ट करनी है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए वो IEP गोल सिखा सकते हैं. ठीक है, मैं आई गिव यू एन एग्जांपल लेटर ऑन इन द वीडियो. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या एग्जिट क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है विच वी एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड टू शो और टू अचीव सो दैट वी विल एग्जिट द गोल ऑफ एन IEP एंड वी कैन से दैट द गोल इज अचीव्ड. सो आई बी टेलिंग यू एन एग्जाम्पल अबाउट एन IEP गोल. फॉर एग्जाम्पल हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग द बॉडी पार्ट्स. उसमें हम टीचिंग टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज प्रॉम्प्ट्स, वर्बल प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी फिजिकल प्रॉम्प्ट्स. फिर उसके बाद विजुअल रिकग्निशन होगी कि हम उनको डिफरेंट वीडियोस दिखाते हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स सारे आइडेंटिफाई हुए हैं. हम उनको मॉडलिंग करके दिखा दें कि अपने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करें एंड दे विल सी अस, और मॉडल करेंगे कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, दे विल बी आइडेंटिफाइंग देम. उसके बाद मटेरियल यूज, विजुअल्स हैं, आपके कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं. टैक्टाइल अप्रोच है कि वो खुद अपने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करें एंड दे विल सी अस, और मॉडल करेंगे कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, दे विल बी आइडेंटिफाइंग देम. उसके बाद मटेरियल यूज, विजुअल्स हैं, आपके कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं. टैक्टाइल अप्रोच है कि वो खुद अपने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करें और उनको लर्न कर लें. उसके बाद इसका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा. एग्जिट क्राइटेरिया जो है दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द थेरेपिस्ट एंड द काउंसलर कि वो देखेगा कि क्लाइंट शुड बी एबल टू नो 9 नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय द एंड ऑफ 3 months. और उसको हम क्लासीफाई किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट मंथ में दे विल बी नोइंग फर्स्ट 3 बॉडी पार्ट्स. ठीक है, लिप्स, ईयर्स, नोज. उसके बाद नेक्स्ट मंथ में दे विल बी नोइंग अनदर 3 बॉडी पार्ट्स. फिर उससे नेक्स्ट मंथ में अनदर 3. तो इस तरह डिवाइड करके हमने जो है वो एक गोल को अचीवेबल बनाना है एंड वी मेक इट ईजी फॉर द क्लाइंट सो दैट ही कैन बेसिकली अचीव दैट गोल ओवर अ टाइम स्पैन. और अगर फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर एक मंथ में किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो गोल नहीं अचीव हो पा रहा, तो वी कैरी फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट मंथ. उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग डाउन ऑफ द लेटर्स. ठीक है, अब एक बच्चे को आना चाहिए. अब हमने पहले एक मेन ऑब्जेक्टिव लिखा कि राइटिंग डाउन द लेटर राइटिंग फ्रॉम I to Q. ठीक है, I to Q उसको लिखना आना चाहिए कि किस तरह से उसने वो लेटर्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे की हम बात करें विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. उसमें हमने देखा कि फर्स्ट मंथ में उसने IJK लिखना सीखा. वो किस तरह से लिखना सीखा, उसने प्रॉब्ली ट्रेसिंग इन द सैंड की. ठीक है, उसके थ्रू लिखना सीखा. उसने इन द एयर, हम इस तरह करके ड्रॉ करते हैं, उनको सिखाते हैं किस तरह से ड्रॉ करना है. ठीक है, वो हो गया एक तरीका. उसके बाद एक तरीका ये हो गया कि आप उनको फिजिकल प्रॉम्प्ट्स दो और उनको बताओ कि किस तरह से लिखना है. फिर आप उनको डॉट्स बना के दे दो एंड दे विल राइट इट कि डॉट के ऊपर किस तरह से उसको ट्रेस करना है. फिर इसी तरह से हमने उसको डिवाइड किया कि फर्स्ट मंथ में IJK लिखना आया, फिर उससे नेक्स्ट मंथ में आया LMN, उससे नेक्स्ट मंथ में आया OPQ. उसके बाद हमने बाय द एंड ऑफ दीज 3 months एक स्मॉल असेसमेंट कर ली एंड वी विल आस्क देम टू राइट डाउन दीज लेटर्स एंड दे विल फॉलो एंड दे विल सी कि वो लेटर्स विल द थेरेपिस्ट एंड द काउंसलर कैन सी कि वो लिखना उसको आ रहा है या वो नहीं आ रहा. ठीक है, ओके. सो यहाँ तक हम बात करें थे शॉर्ट टर्म गोल्स की जो कि 3 months या 6 months के टाइम स्पैन में अचीव हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, क्योंकि IEP में फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स भी आते हैं. अब लॉन्ग टर्म गोल्स में मोस्टली यही होता है कि वी फॉलो द शॉर्ट टर्म गोल्स और उन्हीं की कंटिन्यूएशन होती है. बट अगर एक जनरल एग्जाम्पल दूँ तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने बटनिंग अनबटनिंग की बात की, तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स में ये लिख लेंगे कि द चाइल्ड कैन कम्प्लीटली बटन एंड अनबटन ऑल द बटन्स ऑफ द शर्ट. ठीक है, उसके बाद उसको लेटर राइटिंग जो है वो A to Z आ जाए. नंबर्स हो गए 1 to 50, 1 to 100 इस तरह से. तो दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एन IEP इज नेवर कंप्लीट विदाउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. सो दोनों को कंबाइन करके एक पूरा IEP बनता है. अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात होगी. उसके बाद आती है प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट. जैसे कि मैंने पहले बताया कि वी नीड टू फॉर्म अ बेस लाइन. उसमें हम देखते हैं कि करंट लेवल ऑफ प्रोग्रेस जो है वो चाइल्ड का क्या है, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम लिमिट हमने स्क्राइब की थी, उसके एंड पे हमने देखना है पोस्ट असेसमेंट करनी और हमने देखना है, हमने मेजर करना है कि चाइल्ड को कितना वो गोल जो है वो परफॉर्म करना आ गया है
और कितना नहीं आया। तो पोस्ट असेसमेंट से फिर वी डू अ स्मॉल कंपैरिजन और फिर हम देखते हैं कि कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज सेट की हुई 80% या 90% एक्यूरेसी, तो हमने देखना है कि उस परसेंटेज तक अचीव हो गया या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट आईपी में वो सेम गोल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर हो गया तो फिर वेल एंड गुड, हम उसकी प्रॉपर असेसमेंट कर लेते हैं एंड वी लेट द पेरेंट्स नो कि ड्यूरिंग दीज बिहेवियर असेसमेंट्स आपके बच्चे ने इस टाइम ड्यूरेशन में ये वाला गोल अचीव कर लिया है और ये वाला गोल जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। So that was all from the video of formulating IEP goals. If you have any questions, you can ask in the comment box and feel free to contact us. Thank you.